students, how are you all? I'm sure you all are doing perfect and enjoying your studies too. So children, welcome to today's class. Let's start our today's lesson, which is reproduction in plants. Plants के parts के बारे में आप पढ़ चुके हो. Plants हमारे लिए कितने important होते हैं ये भी आप जान चुके हो. अब हम जानते हैं कि plants में reproduction कैसे होता है. Make your own kitchen garden. Plant tomato, coriander and green chili seeds in small pots. Water them and keep them in sunlight. What happens? Click the picture and share it in the class. Also write the names of green chili, cumin, fenugreek, cloves, cardamom, cinnamon and coriander in Hindi and 2 more Indian languages. आपको क्या करना है, अपना एक किचन गार्डन जो है रेडी करना है. ठीक है, इसमें आप अलग अलग सब्जियां या फल उगा सकते हैं. अब इनको आप क्या करेंगे, सनलाइट में रखेंगे, इनकी अच्छे से केयर करेंगे. ठीक है, उसमें आपको फिर क्या करना है, ग्रीन चिलीज़ के आपको नाम लिखने हैं, क्यूमिन, फेनुग्रीक, क्लोव्स, इनके आपको नाम लिखने हैं हिंदी में कि इनको हिंदी में क्या बोला जाता है. The process by which living things produce new living things of the same kind is called reproduction. Reproduction in plant is responsible for maintaining their existence in the form of new plant. Plant reproduce in many ways. Most of them reproduce through seeds. A flower changes into a fruit. The fruit contains seeds. New plant grow into or from the seeds. Non-flowering plants reproduce through spores. Some plants reproduce from the other part of them. Roots, stems and leaves reproducing is called multiplying because many plants grow out of seeds or part of one plant. तो रिप्रोडक्शन क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिसमें लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो अपने ही एक तरीके का एक दूसरे जीव को क्या करते हैं, पैदा करते हैं, उत्पन्न करते हैं, उसको रिप्रोडक्शन कहा जाता है. प्लांट्स में जो रिप्रोडक्शन होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है उसके एग्जिस्टेंस को मेंटेन करने के लिए. ठीक है, और न्यू प्लांट को फॉर्म करने के लिए. प्लांट्स रिप्रोड्यूस करते हैं कई तरीके से. ठीक है, और पहला तरीका है, जो मेन तरीका है वो सीड से ही होता है. जो फ्लावर्स होते हैं वो फ्रूट्स में कन्वर्ट होते हैं, फ्रूट्स के अंदर सीड निकलते हैं, सीड को जब आप बोते हो तो वो एक नए प्लांट में ग्रो करता है. और कुछ प्लांट्स जो होते हैं उनमें सीड्स ही नहीं होते, उनमें फ्लावर्स ही नहीं होते, तो वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं. तो अगर आप उनका कोई भी पार्ट, चाहे रूट्स है, स्टेम है, लीव है, उनको अगर आप दूसरी जगह मिट्टी में गाड़ दो या लगा दो तो वो दोबारा से क्या करेंगे, रीग्रो करेंगे. Brainstorm if plant could walk, talk and grow like humans, what will happen? अब प्लांट्स को आपने देखा है, वो जड़ होती है उनकी, वो मिट्टी में धसे हुए रहते हैं, जमे हुए रहते हैं, फिक्स रहते हैं. क्या हो अगर प्लांट्स वॉक करने लग जाए, टॉक करने लग जाए ह्यूमंस की तरह. Reproduction through seeds. Undeveloped seeds do not grow because some are eaten by animals or destroyed by heat and rain. Others may not get the right soil or enough air and water. In this way, only a few seeds get a chance to grow into new plants. Therefore, a plant produces so many seeds to have a chance that at least some of them grow. Thus, the plant tries to maintain and multiply its existence on the earth in the form of new plants. A seed consists of 3 parts. तो ये बाद में पढ़ेंगे. पहले रिप्रोडक्शन कैसे होता है सीड्स के थ्रू, ये हम जान लेते हैं. जो अनडेवलप्ड सीड होता है, जो ग्रो नहीं करता, ठीक है, वो ग्रो क्यों नहीं कर पाता, क्योंकि उनको खा लिया जाता है एनिमल्स के द्वारा या उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है हीट एंड रेन के द्वारा. कुछ ही सीड्स को सॉइल मिल पाता है, मतलब प्रॉपर इनको कंडीशन मिल पाती है ग्रो करने के लिए. सीड कोट. Seed has an outer covering known as seed coat. It protects the baby plant from any damage and injury. Cotyledon means the 2 halves of a seed are called cotyledons or seed leaves. They contain food for the baby plant. Seeds with 1 seed leaf are called monocotyledons, like wheat. Seeds with 2 seed leaves and called dicotyledon, like gram. Embryo, this is the baby plant inside the seed. When conditions are favorable, it forms a seedling. ठीक है, अब हम जान लेते हैं कि सीड के कौन कौन से पार्ट होते हैं. तो मेनली इसके 3 पार्ट्स होते हैं. पहला होता है सीड कोट. इसमें आपका जो सीड होती है उसकी जो आउटर लेयरिंग होती है उसको सीड कोट कहा जाता है. जैसे आपने मटर का दाना देखा होगा, उसमें बाहर उसका मटर का क्या होता है, छिलका होता है. फिर उसके अंदर आपके कॉटलीडोन होते हैं. अगर आप मटर के दाने को खोलते हो तो वो 2 पार्ट में क्या होता है, इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है, वो उसका कॉटलीडोन कहलाता है.
एम्ब्रियो क्या होता है, ये आपका छोटा बेबी प्लांट होता है जो उस सीड के अंदर होता है, और अगर इसको फेवरेबल कंडीशन मिल जाती है तो ये उससे एक प्लांट के रूप में निकलना शुरू हो जाता है, सैपलिंग के रूप में निकलना शुरू हो जाता है। देखो यहाँ पे आपको एक ग्राम सीड जो होता है, चने का दाना जो होता है, उसका एग्जाम्पल लेके समझाया गया है, ठीक है। इस तरीके का ग्राम सीड होता है जो धीरे धीरे बाहर निकलता है। ये उसके दो पार्ट्स होते हैं जिनको दो हाफ्स भी आप कह सकते हो। ये इसके 2 सीड लीव्स कहलाते हैं, ठीक है। और ये इसका मेज सीड होता है जिसके 1 साइड ऑफ द लीव इस तरीके से यहाँ पे मेंशन किया गया है। Germination of seed, the process of growing a baby plant from a seed is called germination. Germinating seed needs air, water and suitable temperature which can be understood by the following points. अब सीड जो होता है ना, उसको प्रॉपर टेम्परेचर चाहिए होता है, सॉइल चाहिए होती है, एयर चाहिए होता है, वाटर चाहिए होता है, जिससे वो ग्रो करता है। A seed needs air because it need oxygen to breathe. The seed gets oxygen from the air trapped in soil. The seeds are sown not deep but near the surface of the soil to let them get air. When water is absorbed, seed becomes quite soft. It swells up and the seed coat is ruptured to let the baby plant come out. The seed needs proper warmth for its cells to become active and grow. Seeds to not germinate in very cold or very hot temperature. A moderate temperature 25 to 35 सेंटीग्रेड नॉर्मली फेवर्स जर्मिनेशन। जो जर्मिनेशन का प्रोसेस यहाँ पे समझ लेते हैं फॉलोइंग पॉइंट से। एक सीड जो होता है उसको एयर मिलती है, और एयर उसको कहाँ से मिलती है, सॉइल के अंदर कुछ एयर जो होती है वो प्रेजेंट होती है, ट्रैप्ड होती है, ठीक है। तो सीड जो होता है जब उसको प्रॉपर एयर मिलती है तो वो ग्रो करना शुरू करता है। फिर जब उसको वाटर मिलता है, क्योंकि वाटर उसको कहाँ से मिलता है, सॉइल में, ये भी एब्जॉर्ब किया जाता है। जब उसको वाटर में से सॉइल मिलता है, सॉइल में से वाटर मिलता है, तो ये धीरे धीरे एक बेबी प्लांट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। सीड को प्रॉपर वार्मथ की भी ज़रूरत होती है, गर्माहट की भी ज़रूरत होती है, जिससे इसके जो सेल्स होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं और वो ग्रो करना शुरू करते हैं। रीड मोर, अ सीड कैन रिमेन inactive for many years. It will start germinating only when it gets the right condition required for germination. अब जो सीड्स होते हैं वो बहुत टाइम तक इनएक्टिव रहते हैं, कई सालों तक ये इनएक्टिव रहते हैं, लेकिन जैसे ही इनको एक राइट कंडीशन मिलती है तो ये ग्रो करना शुरू करते हैं। The seed grows in stages. First of all, the roots appear coming out of the soft, moist seed coat. This is followed by shoot. The roots grow downward and the shoot grows upward towards sunlight. Gradually, green leaves grow. The leaves start making food for the new plant. The new plant at this stage is called a seedling. As the green leaves grow bigger, the seed leaves shrink. Their store of food has finished. Green leaves have started making food for the plant. तो सीड जो है ये अलग अलग स्टेजेस में क्या करता है, ग्रो करता है। ये इसको अलग अलग स्टेजेस चाहिए होते हैं ग्रो करने के लिए। पहले जो उसकी रूट होती है वो ग्रो करती है, वो नीचे की तरफ जाती है ताकि वो सॉइल को पकड़ सके और उसके जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको एब्जॉर्ब करके सीड को दे सके। इसके बाद रूट नीचे की तरफ ग्रो करती है और सूट जो उसका शूट सिस्टम होता है, जो उसका स्टेम सिस्टम होता है, वो ऊपर की तरफ ग्रो करता है ताकि उसको सनलाइट मिल सके। ग्रेजुअली जो ग्रीन लीव्स होती हैं वो ग्रो होना शुरू हो जाती हैं। लीव्स जो होती हैं वो फूड बनाना स्टार्ट करती है न्यू प्लांट्स के लिए, ठीक है। तो ये जो स्टेज होती है उसको सीडलिंग कहा जाता है। Dispersal of seeds. In nature, seeds germinate in the soil. Once the seeds are fully formed, they must find a place to germinate. If all the seeds fall near the mother plant, they will not have enough space to grow. They must move away or disperse from the mother plant. The spreading away of seeds is known as dispersal of seeds. Dispersal of seeds is necessary so that each seed get enough space, nutrition, water and warmth to grow into a new plant. Some seeds have a special structure that help them to travel away from the mother plant. तो सीड डिस्पर्सल होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप देखो एक पेड़ के जितने भी फ्रूट्स हैं जब वो नीचे की तरफ करते हैं तो उनका जो सीड होता है अगर वो वहीं पे जमा हो जाए और वहीं उसके मदर प्लांट के पास वो बेबी प्लांट्स ग्रो करें तो हर एक बेबी प्लांट को न्यूट्रिशन मिलना नामुमकिन है। तो इसीलिए सीड्स का डिस्पर्सल होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वो अलग अलग डायरेक्शन पे जाएंगे तो अलग अलग डायरेक्शन पे जब वो ग्रो करेंगे, अलग अलग जगह पे दूर दूर जब वो ग्रो करेंगे तो उनको अच्छा न्यूट्रिशन मिलेगा। Dispersal by wind. Many seeds are borne away by the wind. The seeds of the milkweed are like parachutes. The winged seed of the
Sycamore and Indian elm guide in the wind. Some of these seeds get covered with soil and germinate when it rains. तो कुछ प्लांट्स के सीड्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, पैराशूट की तरह होते हैं। जैसे कि आपका मिल्कवीड, ये जब हवा के साथ जब ये उड़ते हैं तो ये जब एक जगह पहुंचते हैं तो वहाँ पे ये ग्रो करते हैं, जब इनको सैंड, सॉइल वगैरह, मिट्टी वगैरह, पानी वगैरह मिलता है। डिस्पर्सल बाय एनिमल्स डिस्पर्स प्लांट सीड एंड फ्रूट्स इन 2 ways. The hooked spine of certain seeds stick to the feathers of birds and hair on animals and reach faraway places where they germinate. Many kinds of fruit like cherry, apple, blackberry, etc. are eaten by birds and other animals like squirrels and mice. These animals often take the seed to faraway places. People also help in spreading seeds far away from where they grow naturally. अब एनिमल्स के भी द्वारा सीड्स का डिस्पर्सल होता है। ये 2 तरीके से होता है। उनके बॉडी में क्या होते हैं, फर होते हैं, जिनमें कुछ सीड्स जो होते हैं वो हुक्ड होते हैं, मतलब वो चिपक जाते हैं। ठीक है, उनकी बनावट ऐसी होती है कि वो दूसरे एनिमल से चिपक जाते हैं या बर्ड्स के फेदर पे चिपक जाते हैं। फिर जब वो एक जगह से दूसरी जगह एनिमल जाता है तो वो सीड्स भी उनके साथ जाते हैं। फिर जहाँ पे ये गिर जाते हैं वहाँ पे ये क्या हो जाते हैं, ग्रो करना शुरू हो जाते हैं। या फिर आपने देखा होगा एनिमल्स जो होते हैं वो जो फ्रूट्स होते हैं उनको सीड्स के साथ खा जाते हैं। तो जो उनका एक्सक्रीटा होता है, जो उनका डंग होता है, उनके थ्रू ये सीड से दोबारा से निकलते हैं। तो जो एनिमल का जो डंग होता है वो एक तरह से खाद का काम करता है, और जब इनको मिट्टी मिलती है, पानी मिलता है, एयर मिलता है, सनलाइट मिलता है, तो ये ग्रो करते हैं। Dispersal by water. Seeds of plants that grow in or near water are carried by water to different places. Water is very good medium for dispersal of seeds. Many kinds of seeds like water lily, coconut, etc. disperse by water. कुछ सीड्स को आपने देखा होगा जो पानी के आसपास होते हैं या रिवर के आसपास होते हैं, तो उनके जो ट्रीज होते हैं उनका जब फ्रूट पानी में गिरता है या उसके आसपास गिरता है तो वो पानी के साथ बह जाते हैं और दूसरे जगह पे पहुंच जाते हैं। Dispersal by explosion. In some plants like the ladyfingers, the dried fruit explodes, spreading the seeds away from the mother plant. कुछ प्लांट के जो सीड होते हैं वो एक्सप्लोड हो जाते हैं, और जब वो एक्सप्लोड हो जाते हैं, बर्स्ट हो जाते हैं, तो वो डिफरेंट डायरेक्शन में चले जाते हैं जहाँ पे वो उनको ग्रो करने में हेल्प मिलती है। Reproduction through other paths. Non-flowering plants do not produce seeds, they produce spores. Fungi, mosses and ferns are spore-producing plants. The spores are small and packed in spore boxes. These appear as brown spots on the underside of the leaves. The spore boxes burst and scatter their ripe spores. The spores grow into new plants. Roots, stem and leaves are the vegetative parts of the plant. Reproduction by roots, stem or leaves is called vegetative reproduction. Vegetative reproduction is much quicker than reproduction through seeds. तो यहाँ पे अब हम जान लेते हैं कि रिप्रोडक्शन कैसे होता है प्लांट्स के अदर पार्ट से। तो आपने देखा होगा कुछ प्लांट्स के फ्लावर ही नहीं निकलते, जैसे फंगाई है, स्पोर है, मॉसेस हैं, फर्न्स हैं, आपने मशरूम देखा होगा। ठीक है, इनमें प्लांट में फ्लावर नहीं होता, फ्लावर नहीं होता तो फ्रूट्स नहीं आएगा, फ्रूट्स नहीं आते तो इनमें से सीड नहीं मिलते। तो ये कैसे ग्रो करते हैं, तो ये ग्रो करते हैं इनके स्पोर से। ये अपीयर करते हैं एज अ ब्राउन स्पॉट, जैसे आपने आलू देखा होगा। ठीक है, आलू में क्या होते हैं, उसके कुछ बर्ड्स निकल रहे होते हैं, ईयर बर्ड्स निकल रहे होते हैं। जब आप उसको मिट्टी में डाल देते हो तो उसी में से नया पोटैटो प्लांट जो है वो निकलना शुरू हो जाता है। कुछ के जैसे आप लीव्स वगैरह कट कर देते हो, टहनियाँ कट कर देते हो, जैसे रोज़ प्लांट की अगर आप टहनी कट करके दूसरी जगह इसको मिट्टी में डाल देते हो तो वो धीरे धीरे जड़ बना देता है और वो वहीं पे ग्रो करना शुरू हो जाता है। New plants from the roots, sweet potato, radish, turnip, carrot, etc. are roots of plants which have stored food in them. If you plant them in the soil or put in water, roots and shoots grow from them. तो कुछ प्लांट जो होते हैं वो रूट से ही ग्रो करते हैं। अगर आप इनको जैसे रूट से उखाड़ते हो फिर दूसरी जगह लगाते हो तो उससे न्यू प्लांट में ग्रो करना शुरू करते हैं, जैसे टर्निप है, कैरेट है, स्वीट पोटैटो, रेडिश है, एक्सेट्रा। New plants from the underground stems. Potato, ginger and onions are underground stems which have stored food in them. Potato and ginger have bird's eyes. If we plant them into the soil, a new plant grows from the bud. Onion is called a bulb. Because it is shaped like a bulb, we plant bulbs of onion onto the soil to get new plants of it. ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था पोटैटो एंड जिंजर जो होता है इसमें बर्ड्स होते हैं जिनको हम आइज भी कहते हैं। अगर आप इन बर्ड्स वाले पार्ट को कट करके किसी मिट्टी में डाल देते हो तो वो उसी में से ग्रो करना शुरू हो जाते हैं।
New plants from the runners. Plants like strawberry, grasses and mint have weak stems. Their stem creeps along the ground, side branches grow out of the creeping stem. They separate and go inside the soil to grow into new plants. They look as running on the ground, so they are called runner. इनको रनर क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये क्या करते हैं, ये जैसे क्रीपर्स होते हैं, तो ये क्रीप करते करते ग्राउंड में आगे जाते हैं और जैसे जैसे जो इनकी टहनियाँ होती हैं, जब ये किसी मिट्टी से इसके टच में आते हैं तो ये न्यू प्लांट में ग्रो करते हैं, तो ये रनर की तरह वर्क करते हैं, आगे आगे बढ़ते रहते हैं. New plants from the stem cuttings. Sugar cane and rose plants are grown from the stem cuttings. A stem cutting with birds is planted in the soil. The cutting grows into a new plant after a few days. New plants from grafting. When cuttings are attached to the shoots of another plant is called grafting. By this method, a branch cutting of a sweet mango grafted on the stem of a sour mango tree gives sweet fruits. A cutting of a violet rose will produce violet flowers even on the plant of red rose. There will be flowers of two colors on one plant. तो ग्राफ्टिंग करके भी क्या होता है, न्यू प्लांट्स को ग्रो किया जाता है. ग्राफ्टिंग क्या होती है, इसमें आपका एक जो प्लांट का पार्ट होता है उसको कट करके दूसरे प्लांट के साथ अटैच किया जाता है, टेपिंग वगैरह की जाती है. ठीक है, इससे क्या होता है, न्यू प्लांट का जन्म होता है, उसको ग्रो किया जाता है. जैसे कि एक ब्रांच अगर आप स्वीट मैंगो की कट करके सॉवर मैंगो के ट्री के साथ लगा दो तो आप देखोगे उसमें मीठे फूल आने या मीठे फल आने शुरू हो जाएंगे. अगर आप वायलेट रोज़ के एक टहनी को रेड रोज़ की टहनी के साथ अटैच कर दो तो उसी प्लांट में दो तरीके के रोजेज आने शुरू हो जाएंगे. इसी को ग्राफ्टिंग कहते हैं. न्यू प्लांट्स फ्रॉम द टिप्स ऑफ ब्रांचेस. लेयरिंग. Side branch of a jasmine plant is bent towards the ground and a portion covered with moist soil. The growing tip is exposed. After some days, new roots develop. The branch is cut and the new plant with soil is planted at another place. New plants of raspberries are also grown in this way. तो साइड ब्रांच होती है जैसे कि जैस्मिन प्लांट की, ठीक है, ये क्या होती है, ग्राउंड की तरफ ये बेंड होती है, तो उनका कुछ पोर्शन जो होता है वो मॉइस्ट सॉइल से कवर होता है. ये जो ग्रोइंग टिप्स होती है ये एक्सपोज होती हैं और कुछ दिन के बाद इसमें से न्यू रूट जो होते हैं वो डेवलप होना शुरू हो जाती है. Now new plants from the leaves. Leaves of some plants like Birophyllum and Bougainvillea bear buds on them. We keep in the moist soil. They produce new plants. तो आपने बायोरोफिलम एक प्लांट देखा होगा, उसकी लीफ में से भी आप अगर चाहो तो न्यू प्लांट ग्रो कर सकते हो, या ऐसा किया भी जाता है. ठीक है. प्लांट्स फ्रॉम far away places. Not all plants that we see around us are originally from India. Many other plants that we use in our daily lives came to India from other parts of the world. Many vegetables like potatoes, tomatoes and chilies came from South America. Lemon, cabbage and cauliflower came from Europe. Onion and wheat came from Egypt. Marigolds from Central America and roses from China. Africa was the home of coffee beans. तो बहुत सारे प्लांट जो ऐसे हैं वो जो इंडिया से ओरिजिनेट नहीं हुए हैं, वो बल्कि कहीं और किसी दूसरे कंट्री से ओरिजिनेट हुए हैं और यहाँ लाए गए हैं, फिर यहाँ पे उनको फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं तो वो यहाँ पे भी ग्रो करते हैं, जैसे कि कॉफ़ी बीन वगैरह. The banana, so much a part of India's food culture and traditions, is originally from Southeast Asia. बनाना जो है ये भी इंडिया का नहीं है, हालांकि आप देखते हो आजकल बनाना जो है हर घर में खाया जाता है और इसके काफ़ी यूजेस भी हैं, लेकिन ये साउथ ईस्ट एशिया का माना जाता है. Tea is a very popular drink in India. It was discovered by the Chinese and brought to India by the British. Tea comes from a tropical evergreen plant. It needs rainfall, but water should be allowed to collect around the roots. This is why tea is grown on slopes so that water can easily drain away after rain. The tender leaves are dried, processed and packed to be sold in shops. चाय के बारे में अगर आप बात करें तो आपको लगता है कि इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जो चाय पीते हैं, हालांकि चाय जो है वो चाइनीज़ माल है, मतलब ये चाइना में इसका जन्म हुआ था, उत्पत्ति हुई थी, फिर धीरे धीरे ब्रिटिशर्स जब इंडिया में आए थे तो उनके साथ साथ टी भी इंडिया में आई थी. Now brushing up, a process of growing plant from a seed called germination. Seeds can be spread through by wind, by animals, by water or by explosion. Reproduction can be done through other parts like roots, underground stems, लीव्स एक्सेट्रा. तो इस चैप्टर में हमने जाना कि
जो प्लांट होते हैं वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं। जो प्रोसेस होता है ग्रोइंग प्लांट का, एक सीड से वो जर्मिनेशन कहलाता है, और जो सीड्स होते हैं वो अलग अलग जगह के जाकर के डिस्पर्स होते हैं, फिर उनमें से न्यू प्लांट जो है वो ग्रो करता है। लेट्स प्रैक्टिस नाउ, टिक द करेक्ट ऑप्शन। द एम्ब्रियो गेट्स अ फूड फ्रॉम द, कहाँ से इसको फूड मिलता है, सीड कोड से। Fill in the blanks with suitable words. Seed coat protects the dash from any damage and injury. तो seed coat जो होता है ये बेबी प्लांट को प्रोटेक्ट करता है। Answer the following questions. What do you mean by reproduction? Why do plants reproduce? तो आपको यहाँ पे बताना है रिप्रोडक्शन क्या होता है, जिसमें जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं वो अपने ही तरह के एक दूसरे लिविंग बींग को जब वो प्रोड्यूस करते हैं तो रिप्रोडक्शन कहलाता है। प्लांट्स क्यों रिप्रोड्यूस करते हैं ये आपको बताना है। Fun time. Following are the stages of germination of pea seed. Write 1, 2, 3, 4, 5 below each to show their correct order. अब यहाँ पे pea plant जो है वो कैसे जर्मिनेट करता है, ठीक है, और उसके प्रोसेस को आपको क्या करना है, लेवलिंग करनी है, 1, 2, 3, 4 उसको नंबर देने हैं। Dig further. If seeds are dispersed by many agents, why do we not find these plants growing everywhere in large numbers? तो इसका रीज़न आपको बताना है। अगर सीड्स हर जगह डिस्पर्स होते हैं मैनी एजेंट्स के द्वारा, तो वो हर जगह ग्रो क्यों नहीं करते लार्ज नंबर में। डू समथिंग गुड, वाई प्लांट्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर वर्ल्ड एंड वाई शुड वी हेल्प देम टू ग्रो वेल। इज देयर एनी लिंक बिटवीन प्लांट्स, ह्यूमंस एंड लाइफ? डिस्कस इन क्लास। बिल्कुल संबंध है प्लांट्स का, ह्यूमंस का एंड लाइफ का। प्लांट्स जो हैं ये प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं, ह्यूमंस क्या कहलाते हैं, कंज्यूमर्स कहलाते हैं। तो हम अपने खाने के लिए ज़्यादातर किस पर डिपेंड होते हैं, प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं। तो कहीं ना कहीं इन के बीच में लिंक जो है वो देखने को मिल जाता है। I can do this. Collect different seeds from the garden and dry them out in separate plastic pouches and stick them in a scrapbook. Label each type of seed and describe it in short. आपको क्या करना है, अपने गार्डन में जा कर के, या अगर आपके पास गार्डन नहीं है, आपके पास अलग अलग पौधे हैं, पॉट्स हैं, तो उनमें से आपको क्या करना है, अलग अलग सीड्स को कलेक्ट करना है, फिर उनको अच्छे से धोकर सुखा करके आपको प्लास्टिक पाउचेस में पैक करना है और उनको आपको अपनी स्क्रैप बुक में चिपकाना है। साथ ही साथ आप हर एक सीड को लेबल करेंगे और उसके बारे में डिस्क्राइब करेंगे शॉर्ट में। So children, I hope you understood the chapter very well. Now you will revise the chapter and practice the given exercise to understand the chapter thoroughly.